المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام چل رہے خواجہ غریب نواز ہاسٹل پونچھ میں یوم جمہوریہ کی مناسبت سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پروگرام حاجی عبدالعزیز میر صاحب کی قیادت و صدارت میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر پروفیسر شمیم احمد بانڈے صاحب نے پروگرام میں شرکت کی اور قومی پرچم لہرایا۔ اس پروگرام میں المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے اراکین کے ساتھ ساتھ خواجہ غریب نواز ہاسٹل کا پورا سٹاف، بچے اور معزز شہری شامل ہوئے۔ اس موقع پر جہاں بچوں نے رنگا رنگ تمدنی پروگرام پیش کیا، وہیں ٹرسٹ ممبران اور دیگر مقررین نے آج کے دن کی افادیت اور اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے یوم جمہوریہ کا تاریخی پس منظر بیان کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ حاجی عبدالعزیز میر صاحب کی صدارت میں چلنے والا پونچھ کا ایک غیر سیاسی ٹرسٹ ہے، جس کے زیر اہتمام کئی فلاحی، ملی اور تنظیمی کام کیے جاتے ہیں۔ اس ٹرسٹ کے زیر اہتمام جہاں خواجہ غریب نواز ہاسٹل پونچھ چل رہا ہے، جس میں کثیر تعداد میں غربا و مساکین بچے زیر تعلیم ہیں، وہیں پرانی پونچھ زیارات کے کام کاج اور وہاں پر مسجد کو تعمیر کیا گیا اور اب وہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام کئی مساجد، مدارس، مکاتب اور غربا اور مساکین کے گھر بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں ٹرسٹ کی جانب سے سماج کے ہر ورگ کے غریب طبقہ کی امداد وقتاً فوقتاً کی جا رہی ہے۔ اس مناسبت سے اراکین ٹرسٹ نے اہل دل حضرات سے آج کے اس پرمسرت موقع پر اپیل بھی کی ہے کہ وہ اس ٹرسٹ کی مالی معاونت بھی کریں تاکہ ٹرسٹ دیگر سماجی فلاحی کام کرنے میں اپنا نمایاں کردار ادا کر سکے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر خواجہ غریب نواز ہاسٹل پونچھ میں منعقدہ پروگرام پر دیکھیے ہماری ایکسکلوزیو رپورٹ۔ اب اس کے بعد میں حافظ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا، پربت و سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا، وہ سنتری ہمارا، وہ پاسباں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ Important day as today is Republic Day, the 26th of January. Many years ago saw the adoption of our nation's constitution, a set of laws designed to ensure that all citizens coexist peacefully and fairly. عزیز حاضرین، آج کا یہ تاریخ ساز دن جس کو جشن جمہوریت کے طور پر ہر سال پورے ملک میں منایا جاتا ہے، یہ ہم ہندوستانیوں کے لیے قومی تہوار کا دن ہے۔ Republic means that the citizens of the country hold the supreme power to elect representative. Representative constitution give us the same rights despite any difference of religion, color or language. Country we hold so much dear, the Indian flag flies high, showcasing our diversity, unity and pride. The tricolor reminds us for the sacrifices made, and for them we observe a grand parade with freedom and justice. آپ زندہ تو باغ ہے میرا، میں تیرا پرندہ، ہے عرضی دیوانے کی جب اور سہانی دیکھی، ایک روز وہی میری شامو، جینے کی اجازت دے دے یا حکم شہادت دے دے، آ رہا ہے آئین پہ تیرے آنچائے، غیرت کو نہیں یہ گوارا ہے،
अलहाज अब्दुल अजीज साहब जिन्होंने बड़ी काविशों से दिन रात की अनथक मेहनत से इस इदारे को बनाया और यहाँ तक पहुँचाया। जामिया ने इस दिन को मनाने के लिए एक कोशिश की और इंशाअल्लाह उसमें कामयाब हुए। आपको पता है कि ये 26 जनवरी आज 75 साल गुजर चुके हैं। हमारे हिंदुस्तान के कानून जो नाफिज हुआ, जिस कानून ने यहाँ हर एक को बराबरी का हक दिया, ख्वाह वो बच्चा हो, बड़ा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम लोगों को यकसा जो है हकूक दिए और सबको एक आगे तरक्की करने का मौका दिया। आपको इल्म नहीं कि 1947 से पहले जब यहाँ अंग्रेज़ों का राज था तो हमारे काले लोग जिनको ये कहा करते थे, यानी जिसमें मुसलमान थे, हिंदू थे, सिख थे, यहाँ हिंदुस्तान के असल रहने वाले लोग जो थे, उनको ना तो अपने हकूक मांगने का कोई भी जरिया था और ना ही उन्हें हक दिया जाता था, ना ही बच्चों को पढ़ने की कोई गुंजाइश थी और ना ही उनको पढ़ने का हक दिया जाता था। के बाद भीमराव अंबेडकर के क़यादत में एक कानून बना जो 1950 को इसी दिन नाफिजुल अमल किया, जिसके साथ ही आप तमाम को यहाँ हिंदुस्तान के हर रहने वाले नागरिक को पढ़ने की, तरक्की करने की और अपने हक लेने की जो है वो कानून ने दे दिया। आले जनाब काबिल इज़्ज़त अलहाज अब्दुल अजीज मीर साहब और तमाम अरकान ट्रस्ट की जानिब से इस इदारे के अंदर भी ये तकरीब मुनक़िद की गई है। आज के जो मेहमान ख़ुसूसी थे काबिल इज़्ज़त जनाब डॉक्टर शमीम बांडे साहब, बड़े अच्छे अंदाज के अंदर पैगाम दिया है। वजाहत हुसैन अंबर साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा, उन्होंने पैगाम दिया है। हम अलहाज अब्दुल अजीज मीर साहब की जानिब से और ठेकेदार गुलाम नबी मीर साहब की जानिब से, क्योंकि वो आज मसरूफ़ हैं, दोनों हजरात नहीं आ पाए, उनकी जगह उनके साहबजादगान यहाँ पर मौजूद हैं। हम यही पैगाम देंगे कि जो बच्चे इस ट्रस्ट से वाबस्ता होकर के अपनी दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं कि जिनके लिए ज़रूरियात और सहूलियात पूरा करना दुश्वार था और अल्हम्दुलिल्लाह ताला अरकान ट्रस्ट ने बड़ा अच्छा यहाँ पर एक काम शुरू किया है। ये बिल्डिंग आप देखते हैं जो 4 मंजिला बिल्डिंग है आलीशान, इसके अंदर इन बच्चों के लिए क़याम का, ताम का, तालीम का, स्कूल की तालीम भी है और मजहबी तालीम भी इनको दी जाती है। इनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जाता है और मुल्क हिंदुस्तान का जो कानून है उसकी मुकम्मल तौर पर जो है वाक़ियत की कराई जाती है, ताकि हमारे बच्चे आने वाले दिनों के अंदर मज़हब और मुल्क के वफादार बन सकें। और बिल्कुल हम सबको चाहिए कि हम अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व सलामती और भाईचारे को कायम करने के लिए अपनी सलाहियतों को बरोज़गार लाएँ, चूँकि मुनाफरत, तासुब, फ़िरका परस्ती ये मज़हब इस्लाम के अंदर बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। जुमे जमहूरिया के मौका पर मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप जानते हो कि आज के इस दिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की सरपरस्ती में हिंदुस्तान का कानून इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950। हालांकि ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हम लोग जुमे जमहूरिया मनाते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी तारीख है, वो कभी फिर आपसे बात करेंगे। आप सबको उम्मीद है कि जो मैसेज, जो उस हमारी दुनिया की सबसे बड़ी रिटन बुक जिसको आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उस मुतबर्रर बुक जिसको हम लोग बहुत ही इज्जत से उस किताब का नाम लेते हैं और उस किताब में लिखे हुए हर लफ्ज़ की हम इज्जत करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आप उस किताब को समझोगे और अपनी ज़िंदगी में फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को समझोगे और आप भी वैसे ही काम करोगे। सबसे बड़ी बात उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में यही है कि हम लोगों को प्यार और मोहब्बत का पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है और लोगों के साथ इंसानियत को जिंदा रखने के लिए एक जंग लड़नी है। और जंग देखिए बॉर्डर्स पे नहीं लड़ी जाती, तलवारों से नहीं लड़ी जाती, जंग आपके बिहेवियर से भी लड़ी जा सकती है, जंग आपकी सोच से भी लड़ी जा सकती है, जंग एक दूसरे के साथ प्यार करके उन तमाम चीजों के खिलाफ लड़ी जा सकती है जो इंतशार फैला रहे हैं, जो सोशल इवल्स को हमारी सोसाइटी में ला रहे हैं और जिससे हमारे देश की तरक्की में फर्क पड़ता है।
हमारे एम्बेसडर बनोगे, आने वाले वक्त में आप हमारे इस देश की शान बनोगे और आने वाले आप भी साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे कलाम, डॉक्टर डीके सवेन जैसे बनोगे कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदुस्तान के लोगों के लिए कंट्रीब्यूट कर दी। मैं इसके साथ साथ में दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के जो रहबर हैं, हमारे यहाँ के जो सरबराह हैं, अब अलहाज अब्दुल अजीज मीर साहब को, कि जिनकी सरपरस्ती में ये इतना बड़ा हॉस्टल चल रहा है, मदरसे चल रहे हैं, ज़ियारत का काम कर रहा है, जिस तरह से उन्होंने भी अपनी जिंदगी को सर्व कर दिया सोशल वर्क करने के लिए, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं जनाब हाफिज मजीद साहब को और जितने भी हमारे मेंबरान ट्रस्ट के हैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ बुलाया, मदऊ किया और आप बच्चों के साथ बात करने का मौका दिया।